There's a saying that the journey is often more beautiful than the destination itself. Well, that's exactly what this trip helped me realize. Let's roll the intro. So hey guys, this is Yashish and you're watching Monday Utopia. This video is all about my journey to the Kedarkantha trek. So we started our trip to Kedarkantha from Delhi by heading towards Dehradun, which is around 247 kilometers from Delhi. The Kedarkantha trek mostly starts from Dehradun, so you can book a train from your city to Dehradun or a bus if you are traveling from Delhi. Either of which will cost you around 800 to 1000 rupees. So after an 8 hours long bus journey, we reached Dehradun while witnessing a beautiful Christmas morning sunrise. So it's 7 AM in the morning and हम लोग ISBT देहरादून उतर चुके हैं. एक्चुअली अब हम अपनी कैब की तरफ ही जा रहे हैं और जब हम थोड़ा सा स्टॉपेज लेकर हम लोग निकलेंगे सांकरी के लिए, जो कि 10 घंटे और लगेंगे वहाँ के लिए. So right now we are standing at ISBT Dehradun and we are waiting for our fellow passengers. So हम यहाँ से निकलेंगे मोरी के लिए, नॉट फॉर सांकरी, क्योंकि एक्चुअली कुछ ऑल्टीट्यूड सिकनेस के केसेस हो जाते हैं, इसलिए हम पहले मोरी पर हॉल्ट करेंगे, उसके बाद सांकरी के लिए निकलेंगे. तो आई विल गिव यू एन अपडेट अबाउट दैट. And just like that, we started our journey towards Mori. And in no time, we were in the mountains. And I'm sure every traveler knows this beautiful road to Mussoorie, where you can watch the city of Dehradun in all its glory. So we have just crossed Mussoorie and we have taken a halt at this beautiful location. और इसके बाद हम डायरेक्टली मोड़ी पर रुकेंगे. यहाँ से अराउंड 4 घंटे का और रास्ता है. Then we will reach our destination for the day. So Mori is around 160 kilometers from Dehradun, and it takes around 7 hours to reach there, and maybe more if you take some halts in the middle. And from Mori, Sankri is just 21 kilometers or about 1.5 hours away. So अभी हम नैनबाग एरिया के पास रुके हैं और यहाँ से अभी जो मोड़ी विलेज है वो अराउंड 100 किलोमीटर है. सो हमें और अभी यहाँ पे करीबन 3-4 घंटे लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचने में. और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जो सांकरी है वो कल ही हो पाएगा. सो आज हम मोड़ी में ही हॉल्ट करेंगे और उसके बाद कल सुबह सुबह निकलेंगे सांकरी के लिए एंड देन वी विल हेड टुवर्ड्स जूडा का तालाब. And I just cannot praise the roads enough. We crossed places like Damta, Nainbag, Naugaon and Purola, and the terrains were changing with every passing place. It was a delight to be on those roads. हम लोग इस वक्त डेरिका गांव में हैं और ये करीबन 1 घंटा दूर है मोड़ी से. और यहाँ पे हमने एक स्टॉपेज लिया है हारकीदुन रेस्टोरेंट के पास. तो इसके बाद हम डायरेक्टली मोड़ी पर ही रुकेंगे. चलते हैं, अब हमारी ट्रैवलर हमारा ही वेट कर रही है. Enjoying this gorgeous view of the sunset, we reached this beautiful serene village by the name Nanai, which was our destination for the day. क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, ये कौन सा क्या गांव कहलाता है? ये हाँ जी. नाना नाना
नानाई। हाँ तो इधर आके बता दो। इधर ही आ जाओ आप लोग। शर्मा क्यों रहे हो? ओ क्रिकेट खेलते हो आप? क्या बात है, बैट खुद बनाया आपने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, बाइक भी आपकी है क्या? बाइक भी आप चलाते हो? अरे ये तो आपकी जितनी गाय हैं? ये गाय तो आपकी जितनी है। The journey was a bit exhausting, but this village gave us all the peace and rest we would need for the coming days. The locals made dinner for us, and we ended our day by celebrating and dancing with the locals. And we are not getting over it. बच्चों, क्या नाम था गाँव का? नैना? नानाई। बाय बाय। हम लास्ट नाइट यहीं पे रुके थे। और गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग ब्रो। और लेट मी शो यू द विलेज। अब हम यहाँ से निकलेंगे सांकरी के लिए, जो अराउंड 1.5 और 2 आवर्स के लिए जर्नी है हमारी। और उसके बाद सीधा हमारा जो हॉल्ट होगा वो जूडा का तालाब कैंप पर होगा। और उसके बाद हमें जाना है बेस कैंप पर केदारकंठा। मैं एक बार आपको ये विलेज दिखाता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज। रात को भी मैंने आपको ये दिखाया था, बट जस्ट लुक एट द पीस यू आर गोइंग टू गेट हियर। एंड आई स्पेशली वांट टू मेंशन द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द लोकल्स हियर। The locals literally make you feel so comfortable here that you just don't want to leave the place. So, हम जस्ट अपने पूरे ग्रुप का वेट कर रहे हैं और इसके बाद हम डायरेक्टली निकलेंगे सांकरी के लिए, और सांकरी से निकलेंगे हम जूडा का तालाब के लिए। सो सी यू ऑन द ट्रैक। And then we headed towards Sankri from Nanai village, and it took us about 1.5 hours to get to Sankri village. And this is the main market of Sankri, where you can rent all the things you need like trek pants, jackets, shoes, etc. So this was our hotel in Sankri. Talking about the availability of rooms and tents, I would recommend you to book an entire package if you are going on a long weekend like Christmas, New Year or Republic Day, as you can face availability issues sometimes. While December and January can be considered the best time to visit this place. So we have just arrived at our hotel in Sankri, and यहाँ से अब हम जूडा का तालाब की तरफ बढ़ेंगे। And one thing I would like to recommend you all is that you have to come prepared for here. Like अगर आप लोग basic amenities से restrict होकर रह सकते हैं, so you should opt for it. Like washroom and everything, वो आपको यहाँ पे बहुत ही limited मिलेगा। पानी यहाँ पे बहुत limited मिलेगा, तो आपको उसी में manage करना पड़ेगा। अब वो आप जैसे भी करें, so you should come prepared for it. तो it will be easier for you. अदर देन दैट अभी हम बस जूडा का तालाब के लिए यहाँ से मूव करेंगे। सो मैं आपको अब सीधा ट्रैक पर मिलता हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जा रहे हैं केदारकंठा ट्रैक पे। माय नेम इज प्रेम वस्त्रकार।
मैं आपके पूरे ट्रैक पर साथ रहूँगा। यू कैन कॉल मी प्रेम। और अभी हरगांव तक हमारे अमित सर हमारे साथ चलेंगे। अभी हम जा रहे हैं हरगांव, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर है। ठीक है सर। और 3 किलोमीटर लगभग हमको 3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है सर। रास्ते में अगर म्यूल्स आते हैं, म्यूल्स घोड़े खच्चर, ठीक है, तो आपको माउंटेन साइड देना है। और सर कोई भी ग्रुप छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ट्रैक लीडर से बिना परमिशन के कोई कहीं भी नहीं जाएगा। साथ में ही रहना है। एक साथ ऊपर चढ़ेंगे सर। ओके ओके। और अपने सारी चीज़ें कैरी कर लेना सर। ठीक है। पानी बॉटल रख लेना सभी ने अपना। सबके पास सेपरेट, सबके अपने अपने। पानी पहले खुद पीना, बाद में दूसरे हेल्प करना। ओके। सुबह और रात में आपको पानी मिलेगा बॉइल, और आपको दोपहर में ठंडा ही पानी पीना पड़ेगा। दोपहर में आपको गर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि दोपहर में पहले से धूप होती है, तो आपको इतना भी वो नहीं होगा, उससे टॉलरेट कर लोगे आप। और बाकी जो भी है, सबसे टफ टास्क है इस ट्रैक का यहाँ की सर्दी, उससे बचाना है खुद को बस। सबके पास विंड शीटर जैकेट और ट्रैक पैंट्स होने ही चाहिए। और जो आपको कैंपिंग साइट पर टेंट मिलेंगे, उसकी स्पेस को कोशिश करना कि फुल्ली ऑक्यूपाइड कर सको। उस पर स्पेस मत छोड़ना। अगर स्पेस छूटा तो रात में लगेगी ठंड। रात में ठंड लगेगी तो आपका कोई भी पार्ट का ब्लड वेसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उससे आपको दिक्कत होगी। वो पार्ट आपका काम नहीं करेगा। -15 तक जाएगा टेम्परेचर, -20 तक भी जा सकता है। वो क्लाइमेट के ऊपर है। अगर टेंट 3 का है तो उसमें 3 लोग प्रॉपर होना चाहिए एक टेंट। अगर 4 का है तो 4 लोग प्रॉपर। जो भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, सब लोग कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को। अगर ये एडवेंचर ट्रैक बढ़िया बनाना है तो सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलेंगे। बाकी ट्रैक लीडर आपके साथ रहेंगे। इनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, किसी को भी इधर उधर नहीं करना है। कोशिश करना है एक दूसरे पे ज़्यादा बर्फबारी ना करो। ओके। और मैंडेटरी चीज़ सारी ले लेना, ग्लव्स, कैप्स, सनग्लासेस, जैकेट, शूज़, ट्रैकिंग शूज़, 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स, और फ्लीस वगैरह भी ले लेना ग्लव्स की, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे अगर वो नहीं है तो भी हो जाएगा। Okay guys, Thank you. All the best. Thank you. So we have just taken off for the Kedarkantha trek, and let me introduce you to my crew. Hi guys, this is Shubham. Hi, this is Shayan. हाँ भाई, introductions. Hello. Hi, my name is Kashish. Saurabh. दृष्टि। हाँ, गीतांजलि। Subscribe me. हाँ, subscribe on the Utopia. So I hope all the points were covered in the trek brief on what to carry and how to get prepared for this trek. But still, if you have any doubts, you can let us know in the comment section and I'll make a separate video on that. So अभी हम लोग 3 किलोमीटर दूर है हरगांव से। आज जो हमारा स्टॉपेज है वो हरगांव पर ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर टाइम बचा तो क्या पता हम जूड़ा का तालाब भी चले जाएं। I was thrilled to take on these beautiful trails after such a long time. With the mountain view and the fresh air flowing through your lungs. And the best part is the natural water sources. आप लोग सबमिट करके आ रहे हैं? Yes bro. कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत awesome like मतलब Great. words में नहीं कह सकते यार. चलो ठीक है थैंक्स यार थैंक्स। It's going to be one of your best like. Amazing view. बिफोर सनराइज। No, even sunrise. Yeah, इससे even better sunrise, but sunrise मैंने before मेरी लाइफ में sunrise एक्सपीरियंस नहीं किया है. Oh my God. थैंक्स ग्रेट। All the best. Thanks brother. From this point on, the trail has become a little bit more steep. मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ये थोड़ा फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लिया है और इसके बाद हम हरगांव के लिए बढ़ेंगे। सिर्फ 1 किलोमीटर रहता है। अभी 10 मिनट के ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रेक लेने के बाद से
थोड़ा जो चढ़ाई है वो और ज़्यादा स्टीप हो गई है, बट हमने शायद ज़्यादा ही ब्रेक ले लिया जो 10 मिनट का था। अगर बीच बीच में 2-3 मिनट के थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रेक्स हो तो ज़्यादा बेटर रहता है एक लॉन्ग ड्यूरेशन का ब्रेक लेने से। This part of the trek is really challenging, so you should come prepared. और जब हम ऊपर पहुंचने की होप लूज़ करने ही वाले थे तो हमें सामने अपने कैंप्स दिखने लग गए हैं। और गाँव पहुँच गए हैं, हमारा पहला स्टे काफ़ी फटने फर्स्ट स्टेज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहा। डिफिकल्ट रहा। ये यूट्यूब वाले आधे दिखाते हैं बहुत इजी है, बिगिनर्स के लिए बहुत इजी है, फटी पड़ी है हमारी इधर। और हम ट्राई करेंगे जितना हो सके सच दिखाएं। हाँ, And क्योंकि it अगर was- तुम लोग आओगे तो हमारी वीडियो पे गालियाँ डालोगे। सो आई वुड रेकमेंड कि आप बहुत ही लाइट बैग लेकर जाएं और बेसिक नेसेसिटीज़ के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ ना लेके जाएं जो आपके काम नहीं आनी हो और आपको फालतू में बेयर करनी पड़े। That was an honest opinion of a fellow traveler, guys. Everyone was exhausted after this part, but you'll see why it was totally worth it. So this is our campsite. हरगांव कैंप। Let me show you the camps from the inside as well. This is the camps and how it looks from the inside. This is a 4-person camp. Oh, it's really beautiful. एक लंबे ट्रैक के बाद खाना खाने का बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है और यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से गरम गरम दाल चावल मिल गए। On that note, I'll take your leave. But stay tuned as a lot more adventure is coming your way in the next part of this series. Till then, don't forget to subscribe and keep supporting us. This is Yashish signing off. You're watching Wonder Utopia. Keep exploring.